வணக்கம். வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே. இன்றைய கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நேர்காணலை இன்று நாம் நடத்த இருக்கிறோம். இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் வேட்பாளராக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளவர் குஜராத்துடைய முதலமைச்சர் திரு நரேந்திரபாய் மோடி அவர்கள் இன்று நம்மோடு கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சியில் இணைகிறார். நரேந்திரபாய் மோடியிடம் கேட்பதற்கு கேள்விகளுக்கா பஞ்சம், ஆயிரக்கணக்கான கேள்விகள் இருக்கின்றன. வாருங்கள், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கேட்கலாம் இன்றைய கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சியில். வணக்கம். Vanakkam. Last 2 days you are spending your whole time and completely a strong propaganda in Tamil Nadu. How do you feel? What is the reaction from public? Are you comfortable with it? Kaisa lag raha hai? Well, I started my campaign immediately after the announcement of election. After the announcement of election, I have visited more than 100 parliamentary constituencies. And it is not a small number. I have visited each and every corner of the country. Maybe it's the south, it's the north, it's east, it's the west. And first time I found the maturity of the Indian electorate. Previously we were finding that they were mixing the state subject and the center subject. They were confusing. Confusion was there. The first election, there is no confusion at all. Even in the state like Arunachal, where assembly and parliament elections are there, Odisha, assembly and parliament elections are there. But even though they have segregated how to respond assembly election and how to respond parliament election. So this is the unique element in this election. The second thing is, normally in election we find that there is a negativism is there. But this election, anti-incumbency, that is one factor. But strong negative feeling. This time, the strong feeling is of hope. Positive vote. People think, yes, if new government will come, we will get something, country will be improved. So it's an election of the hope. At the same time, the anti-establishment factor, the anger against the rulers, it is of course there. And I can say that the huge, it's a tsunami. It's not a wave, it's a tsunami. And tsunami of hope, tsunami of aspirations, tsunami for change. Tsunami of Modi ji bhi bolenge. Well, it is media to analyze and come to the conclusion. Yeah, Tamil Nadu में क्या फर्क आपको मिला था? Tamil Nadu में throughout you said that you throughout the country the wave is there. In Tamil Nadu, the Dravidian parties are very strong. देखिए, बहुत सालों से तमिलनाडु में दो द्रविडियन पार्टियों में ही खेल चलता था. लोग तंग आ गए हैं कि भाई ये पार्टी फिर वो पार्टी, वो पार्टी फिर वो पार्टी. लोग बहुत सालों से एक थर्ड वायबल अल्टरनेट की तलाश में थे. अच्छा हुआ है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ बीजेपी एंड एनडीए 4-5 मेजर फोर्सेस हैज कम टुगेदर. इसके कारण तमिलनाडु के लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है. दूसरा, स्टेट का इलेक्शन नहीं है, सेंटर का है. इसलिए उनके लिए डिसीजन लेना कोई ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है. उनको लगता है ओके, पार्लियामेंट में इस बार नए लोगों को भेज देंगे. So it is not about state government. We are going to form a... Yes. उनको लगता है कि भाई अगर देश में अच्छा होगा तो फायदा तमिलनाडु को भी मिलेगा. अगर देश में बिजली की स्थिति अच्छी बनेगी तो तमिलनाडु को बिजली मिलेगी. अगर नदियों को जोड़ने का काम भारत सरकार करती है तो तमिलनाडु विल बी द बेनिफिशियरी. ये बात तमिलनाडु का मतदाता बहुत अच्छे ढंग से समझता है. और तीसरा, ये पहला इलेक्शन ऐसा नजर आ रहा है कि तमिलनाडु इलेक्शन का ड्राइविंग फोर्स यूथ है, यंग जनरेशन है. एंड नॉट टुडे,
Even last year when I was doing the analysis of my social media network, and it was surprising for me, on social media, Twitter and Facebook, my maximum followers were from Tamil Nadu. Then I tried to find out who are these, and I found they do not know even English. अच्छा. And that's why I had to started the Tamil language in my social activity. Just because of the love of the Tamil people. I did it. My first language which I started was a Tamil. Other than Indian English. Yes. Because I found that there's a unprecedented love I was getting from the people of Tamil Nadu. So, as you said, here is a new hope, as you said. But do you strongly believe that it can be converted into seats rather than the votes? अब ज़्यादा वोट मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सीट मिलने क्यों? This is the beauty of this election. In our country, जब चेंज आता है, जो फ्रंट रनर होता है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिशियरी होता है. और इस इलेक्शन में देयर इज ओनली एंड ओनली फ्रंट रनर. बाकी जो हैं दौड़ने वाले वो सेग्रीगेटेड हैं. अगर कहीं सेकंड दौड़ने वाला बंगाल में कोई एक है तो उड़ीसा में दूसरा है, उड़ीसा में दूसरा है तो तमिलनाडु में तीसरा है. फ्रंट रनर में कांस्टेंट एनडीए है, बीजेपी है. पूरा भारत में भी पूरे भारत में तमिलनाडु में भी आपको ये इवन इन विश्वास? तमिलनाडु. तो ये फ्रंट रनर का फायदा, एक्स्ट्रा बेनिफिट इलेक्शन अरिथमेटिक में मिलता है जो जीतने वाला है. लेकिन ये अब देख रहे हैं यहाँ का अलायंस जो हुआ है, वेरी आइडियोलॉजिकली दे आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी इन एनडीए. दे वर प्रीवियसली दे वर पोल टुगेदर. नाउ दे आर गेटिंग टू द मीन्स. डू यू फील स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर कोalition विल बी वेरी स्ट्रांगर इन ग्राउंड लेवल आल्सो? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम. बहुत मिलजुल करके बहुत अच्छे ढंग से काम होगा. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर का आपको रिश्ता बोले थे कि वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप इन पर्सनली, बट हाउ द बीजेपी एंड एडीएम के रिलेशनशिप इज दैट? देखिए, मैं दो विषय अलग करनी चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी का अपने उसूल, उसके कारण उनकी विरोध अलग होती है. व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं. अब आप देखिए, बहुत सारे मीडिया के लोग होते हैं जो दिन रात हमको आलोचना करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमारे बहुत अच्छे होते हैं. आप भी मुझे इतने बुरे से बुरे सवाल पूछोगे, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के बाद मैं आपके साथ चाय पीऊंगा. तो ये जो प्रोफेशनल बात एक होती है, पर्सनल अलग होता है. पर्सनल रिलेशन अलग चीज होती है, और होनी भी चाहिए ना. सब मिक्सअप थोड़ा किया जाता है. Now, CM has categorically told that we want to form a alternative government, non-BJP, non-Congress in central. देखिए, जनता के पास जाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना जनता कैसे बाय करेगी. तो ये तो बोलना पड़ेगा. पहले ये सिखाया था कि वो उन लोग दे आर नॉट गोइंग अगेंस्ट बीजेपी, दे आर नॉट सी इज नॉट टेलिंग एनीथिंग अगेंस्ट बीजेपी. लेटर नाउ ओनली सी स्टार्टेड सेइंग लाइक दिस. देखिए, उनकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी के हद जो जरूर लगता होगा वो करते होंगे. तो आप जब टू डिसाइड द पीपल, और तमिलनाडु के लोग तय करेंगे क्या करना है. आप बिजली के बारे में यहाँ पूछ रहे थे, कृष्णगिरी में, सैलम में, हर जगह में. तो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर तमिलनाडु इफ द पीपल गिव मैंडेट टू यू? इजी है, बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ. देखिए, देश में 20,000 मेगावाट पावर प्लांट बंद है बोला था. तो बंद पड़े हैं. क्यों? तो फ्यूल नहीं है, कोयला नहीं है. कोयला क्यों नहीं है? तो पॉलिसी पैरालिसिस है. इतना भी कर दो तो बिजली मिलेगी. अच्छा, बिजली यानी सिर्फ टीवी चलाने के लिए नहीं होती है. बिजली आती है तो उद्योग चलता है, उद्योग चलता है तो जीडीपी बढ़ता है, उद्योग चलता है तो नौजवानों को रोजगार मिलता है, एक इकोनॉमी जनरेट होती है. दूसरा, तमिलनाडु में इतना लिग्नाइट है, लिग्नाइट बेस पर इतना बड़ा काम हो सकता है, और कोयले से काफी चीप इलेक्ट्रिसिटी लिग्नाइट से हो सकती है. तीसरी बात है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल तो अब देश में एक्सेप्ट हो गया है, तो कोई सरकार को इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है. तीसरा, सोलर रेडिएशन तमिलनाडु में बहुत है. देयर इज ए ह्यूज स्कोप फॉर द सोलर एनर्जी, देयर इज ए ह्यूज स्कोप फॉर द विंड एनर्जी. अगर प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों को लाए तो तमिलनाडु अपनी तो बिजली पैदा करेगा ही, लेकिन तमिलनाडु बिजली बेच सकता है.
इतनी बिजली हो सकती Surplus will be there. सरप्लस हो। जितना सीट आप चाहते हैं उतना मिल जाता है यहाँ तमिलनाडु से, तो डू यू हैव एनी स्पेशल प्रोग्राम फॉर तमिलनाडु? देखिए, एक तो तमिलनाडु मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है, इसको हमने बेनिफिट में कन्वर्ट करना चाहिए। और तमिलनाडु के जो अर्बन एरियाज हैं, अगर मान लीजिए हम तय करें कि भाई पूरे तमिलनाडु में, और वो आसानी से हो सकता है तमिलनाडु किसी और राज्य से, तमिलनाडु में जैसे मान लीजिए मेरा एक सपना है कि जब गांधी जी के 150वीं जयंती आएगी 5 साल के बाद, तो स्वच्छता, क्लीनलीनेस, इस पर हम काम करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इस पर हम बल दें। अगर हम आज तमिलनाडु के अर्बन एरियाज के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का अभियान चलाए और वो पानी फार्मर को दे, और सराउंडिंग बड़े सिटीज, तो वहां का फार्मर बहुत बेनिफिशियरी होगा। ज्यादातर बड़े शहर के अगल बगल का फार्मर वेजिटेबल ग्रो करता है, बहुत बड़ी मात्रा में वेजिटेबल ग्रो करेगा, एंड इट विल फ्लड इनटू द सिटी मार्केट। सो कैश क्रॉप विल स्टार्ट। शहर में बहुत बड़ी मात्रा में वेजिटेबल्स आएगा, तो न्यूट्रिशन वैल्यू, हेल्थ व्यू पॉइंट, इट विल बी द बेनिफिशियरी टू द पीपल ऑफ द तमिलनाडु एंड द अर्बन कम्युनिटी। You see, one simple project can earn in millions of $1 million to the Tamil Nadu urban bodies. The same way, there is a huge scope for the development of the ports. Coastal area. Tamil Nadu has a coastal area. It's a rich coastal area. Not only tourism, but port-led development. Fisheries, there is a unique scope for us. There is no attention at all. And my government, whenever will form the government, the BJPs, these are the priorities. At the same time, in electronic good, there is a base in Tamil Nadu. Today, our electronic good import is so high, and that's why the country is facing a lot of problem. Within 10 years, the highest import will be of the electronic good. So Tamil Nadu can take a initiative, electronic good manufacturing initiative. I'm sure because of this initiative, country can save a lot of foreign exchange. तमिलनाडु में देखेंगे तो 5-6 कार्नर है, कंपटीशन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 कोर एरिया, एडीएम के अलायंस और डीएम के अलायंस और भाजपा का अलायंस। इसमें वही ये कॉमन मैन शुड वोट फॉर एनडीए, नॉट फॉर एडीएम के, नॉट फॉर डीएम के। पहली बात है कि सरकार एनडीए की बनने वाली है, पक्का। न डीएमके की बननी है, न एडीएम की बननी है। पक्का हो गया, ये तो पक्का है। डीएमके एडीएम की तो सरकार बननी ही नहीं है दिल्ली में, तो दे आर ट्राइंग टू एडीएम के साथ सरकार, उन लोगों को इसलिए लोगों को क्या चाहिए? लोगों को बदलाव चाहिए। आज लोगों को गुजरात को देखने के कारण, डेवलपमेंट हमारा एजेंडा होने के कारण, गुड गवर्नेंस हमारी प्रायोरिटी होने के कारण, सामान्य मानवी को ये लग रहा है कि भाई रियल चेंज यहां से आएगा। 19-20 के फर्क वाला लोगों को सरकार नहीं चाहिए। लोगों को आमूल-चूल बदलाव चाहिए। वर्क कल्चर में बदलाव चाहिए, इनिशिएटिव में बदलाव चाहिए, एजेंडा में बदलाव चाहिए, प्रायोरिटी में बदलाव चाहिए, एंड स्पीड में भी। और मैं मानता हूं, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान ने 3 बातों पर बल लेना पड़ेगा: स्किल, स्केल एंड स्पीड। 70% पॉपुलेशन इज बिलो 35। यंग जनरेशन पर हमने स्किल पर डेवलपमेंट, 1 point प्रोग्राम फॉर द स्किल डेवलपमेंट, द ह्यूज प्रोग्राम शुड बी स्टार्ट। दूसरा, स्केल। अभी हम जो छोटा छोटा सोचते हैं ना, इससे देश नहीं चलता है। यू वांट टू थिंक बिग। इतना बड़ा देश है, बहुत बड़ा स्केल पे सोचना चाहिए, बहुत बड़े स्केल पे सोचना चाहिए, और एक साथ चीजों को चलाना चाहिए। और स्पीड, ये मरी पड़ी स्पीड से देश नहीं चल सकता। स्काई रॉकेट इंजीनियरिंग की स्पीड से चलना पड़ेगा, और तब जाकर के हम दुनिया जो पहुंची है वहां तक पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए तो और करना पड़ेगा।
तो आपको जिंदगी में एक छोटा सा एक परिवार से, एक चाय वाला परिवार से आपको शुरू किए, आज ये देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आपको बनाया गया, तो अब कैसे लग रहा है? सिंगल ओनली वन लाइफ टाइम यू आर गेटिंग दिस मच हाइक एंड हाउ डू यू फील अबाउट दैट? ये एक ऐसा सवाल आपने पूछा है कि मैं खुद सरप्राइज हूं, क्योंकि मैं इतना गरीब परिवार से आता हूं, इतने पिछड़े परिवार से आता हूं, और जब तक चाय बेचते नहीं थे, रात को चूल्हा नहीं जलता था, बहुत ही सामान्य परिवार से मैं आया हूं। मुझे भी समझ नहीं आता है कि कैसे ये जिंदगी बदलती गई, कहां मोड़ लेता गया। शायद देश की जनता का प्यार है, ईश्वर के आशीर्वाद है, और खुद का कोई एजेंडा नहीं है। मोदी का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है, और शायद मेरा कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए लोगों का भरोसा मैं जीत पा रहा हूं। लेकिन मेरे लिए जरूर सरप्राइज है। लेकिन इसके कारण मुझे ये भी लगता है कि मैं जिस जिंदगी को जिया हूं, मैंने गरीबी देखी है, भूख देखी है, उसके कारण मुझे लगता है कि मैं जब भी कुछ करता हूं तो सबसे पहले मेरे ध्यान में गरीब आता है, दुखियार आता है। तो मेरा मन करता है उनके लिए कुछ करूं। हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए इस काम के लिए पसंद किया होगा, ताकि मैं गरीबों के काम आऊं। तो आप गोवा में आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन फर्स्ट आपसे कौन ये प्रपोजल दिया कि आपको हम लोग प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने वाले हैं? हु स्टार्टेड फर्स्ट? कोई ऐसा प्रपोजल वगैरह होता नहीं है, और न ही कोई 1 to 1 बात होती है। पार्टी फॉरम में डिसाइड होता है, और नॉट नेसेसरी कोई हमको कंसल्ट करके भी होता है। जरूरी नहीं है, मैं तो एक वर्कर हूं। पार्टी की टॉप टीम डिसाइड करती है, उन्होंने बता दिया ये करो तो करो, कर रहे हैं। बट somebody should be initiated something that we can make. I have not inquired about it. I have not inquired, and it's not my job to do that. आप बोले थे कि 300 सीट देंगे तो अपना शब्द को अपना वर्ड का द होल वर्ल्ड विल लिसन। अब 300 सीट हमको मिलेगा तो एनडीए को, तो पूरा दुनिया अपना सुनेगा, हम लोग को आवाज सुनेगा इंडिया का। आप अभी इतना टूर करने के बाद में, द एक्सटेंसिव टूर में, आपको कितना सीट मिलने का आपको इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है? मैं बताता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस विल नॉट बी एबल टू ओपन देयर अकाउंट। कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा कई राज्यों में, और हिंदुस्तान में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा, नॉट अ सिंगल स्टेट, वेयर कांग्रेस कैन टच इवन डबल डिजिट। This will be the worst performance in the life of Congress. Worst performance. And who will be the beneficiary? Naturally, BJP, NDA will be the beneficiary. This election is not an election of arithmetic. When the elections are of the arithmetic, you can count. Last time this much, this time this can. You can count 5% swing, 2% negative swing. You can count. But this is not the election of the arithmetic. This is the election of chemistry. Chemistry of the 125 crore people's mind chemistry is working. And that's why in arithmetic, 1 plus 1 is equal to 2. But in chemistry, 1 nearby 1 is equal to 11. So this election is about the chemistry, not about the arithmetic. Wherever you go, you always talk about development. But the tag called communal is not leaving you. Do you feel that? Is there any conspiracy behind that, or is it a misunderstanding? This is the part of vote bank politics. Those who are indulged in the vote bank politics since the last 50 years, those who have this type of perverted thinking about the secularism, for them, this is only a instrument which they want to use. It is the problem of their thinking. It is not the problem of my thinking. As far as BJP is concerned, for secularism, my philosophy is very clear, and I challenge the greatest secularists of the world who can question me. When I say that, in my secularism, India first, in my secularism. For me, for government, the holy book is our constitution. That is our holy book. According to our constitution, government will have to function. Motto of the government,
इंडिया फर्स्ट। वर्क कल्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सबका साथ सबका विकास। सबको साथ में लेना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। एज पर अवर फिलोसॉफी, हमारी एक ही भक्ति है, एंड दैट इज भारत भक्ति। और कोई भक्ति व्यक्ति नहीं हमारी, एक ही भारत भक्ति। भारत भक्ति में 125 करोड़ देशवासी आते हैं। ये टुकड़ों में देश में सोचने की जरूरत नहीं है। और इसलिए सच्चा सेकुलरिज्म देश को जरूरी है, और जिसमें सर्वपंथ समभाव, हर एक रिलीजन के प्रति समभाव होना चाहिए। जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट टू नन, दिस शुड बी द फिलॉसफी। What is the difference there? देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने, और उस समय स्टॉलवर्ड लोग थे, उसमें कोई आरएसएस बीजेपी वाला नहीं था। उन्होंने जो सोचा है वो हम बोल रहे हैं, हमारा नहीं बोल रहे हैं। जो सदियों से, हजारों साल से जो बुराइयां हैं, उसके संदर्भ में भारत के संविधान के निर्माताओं ने बहुत बारीकी से सोचा है। और मैं मानता हूं आज के हम जो नेता हैं उससे वो ज्यादा बुद्धिमान थे, वो ज्यादा दूर का देखते थे और सही देखते थे। जब कल आपको इंटरव्यू से एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है इस कल कैप पहनने के बारे में, हम अपीसमेंट कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आप खुद ही पहले बहुत सारा टोपी पहने हैं, असम गए थे और पंजाब गए थे, सिख लोगों को टोपी पहने थे। ये मुस्लिम लोगों को स्कल कैप पहनने में क्या दिक्कत है? बाकी आप देखिए, मुस्लिम कैप जो है वो इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं होती है। वो उनका वर्शिप करने का पार्ट है। वो रूटीन में पहनने वाला फैशन का चीज नहीं है, रूटीन का वो यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। और दूसरी बात है, मुझे मेरी परंपराओं का आदर करना चाहिए, मुझे सबकी परंपराओं का आदर करना चाहिए, लेकिन पालन मुझे मेरी परंपराओं का करना है, रिस्पेक्ट मुझे सबकी परंपरा का करना है। और इसलिए मुझे क्या कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा कलर कब पहनना चाहिए, ये भी अगर आप लोग तय करने वाले हैं, तो फिर भारत के संविधान ने मुझे जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, क्या वो मैं एंजॉय नहीं करूं क्या? क्या एक नागरिक के नाते भारत के संविधान ने मुझे हक दिया है, वो हक मुझे एंजॉय करने का। हाँ, मेरा गुनाह तब बनता है कि मैं आपकी टोपी उछालता हूं, मेरा गुनाह तब बनता है कि मैं आपकी टोपी की आलोचना करता हूं। और इसलिए जिन्होंने भी टोपी को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने शर्मिंदगी होनी चाहिए। और जिनका टोपी में इतनी श्रद्धा है, उनको मेरा कहना है कि आप 12 महीना क्यों नहीं पहनते, 24 घंटे क्यों नहीं पहनते, सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के समय क्यों पहनते हो, फोटो निकलवाने के लिए क्यों पहनते हो? अगर आपका कन्विक्शन है तब पहनिए ना, 12 महीने पहनिए ना। दूसरी बात है, क्या महात्मा गांधी को समाज के सब लोगों को जोड़ने के लिए टोपी पहननी पड़ी थी क्या? पंडित नेहरू तो बहुत बड़े सेक्युलरिस्ट थे, लेकिन अपना पंडित नेहरू को कभी टोपी पहननी पड़ी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको कभी टोपी पहननी पड़ी? बोले थे, लेकिन बात ये एक विकृति है हमारे लोकतंत्र में, जो इस प्रकार से उपयोग करते हैं। और फिर भी कोई करता है तो मेरा कोई विरोध नहीं है। वो 24 घंटे टोपी पहने, 365 दिन पहने, 100 कलर की पहने, 100 प्रकार की पहने, हर एक अपना तरीका है। मेरा तरीका ये है, लेकिन मैं हिपोक्रेसी नहीं कर सकता। ये जो सच है वो मैं बोलूंगा, जनता को ठीक लगे स्वीकार करे, न ठीक लगे रिजेक्ट करे। लेकिन मैं जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूं, मैं दम्भ नहीं करूंगा, हिपोक्रेसी नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। ऐसे ही एक प्रॉमिस आप जब अप्रैल 7 में मैनिफेस्टो अपना रिलीज किए थे भाजपा का, उस समय ऐसे प्रॉमिस लेते हैं, उस समय में ये वादा लेने की क्या जरूरत था? उस समय वो वादा लेने की क्या जरूरत था? इसे वाज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन दैट कौन सा वो अप्रैल 7 आप जब मैनिफेस्टो आपको रिलीज हुआ? नहीं, देखिए ये इमोशनल कुछ था। मैं समझता हूं, हमारे देश का मीडिया जो है ना, कुछ लोग, नॉट मीडिया, कुछ न्यूज ट्रेडर,
आई शुड से नॉट मीडिया बट न्यूज ट्रेडर्स, वे बड़ा सिलेक्टिव बात करते हैं, देश का गुमराह करते हैं। मैं सबसे पहले ये विषय 2002 में जब मैं इलेक्शन में गया तब बोला था जनता के सामने। मैंने कहा था, देखो भाई, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं कठोर परिश्रम करूंगा आपके लिए, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आपकी कोई शिकायत नहीं आएगी। दूसरा, मैंने जनता को कहा था कि मैं मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैंने कही थी कि मैं सरकार के मैं नया हूं, मुझे कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, तो काम करते करते गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बद इरादे से मैं गलत काम नहीं करूंगा। ये तीन बातें मैंने 2002 इलेक्शन के पहले बोली थी। 2007 में फिर हम इलेक्शन में गए तो मैंने लोगों को याद कराया, देखो भाई, मैंने 5 साल पहले ऐसा बोला था, आपको याद है? लोगों ने कहा ये याद है। तो मैंने कहा कि भाई बताइए, उसमें कोई कमी महसूस होती है क्या, मुझे सुधार करने की जरूरत है क्या? ये मैंने लोगों को पूछा था। हिंदुस्तान के राजनेता कोई ऐसी हिम्मत नहीं करते। फिर 2007 में दोबारा मैंने कहा कि अगेन दिस इज माय कमिटमेंट। फिर 2012 के चुनाव में गया, फिर लोगों को मैंने पूछा, भाई बताइए वो 3 बातों में आपको कुछ कहना है क्या? उन्होंने कहा नहीं कहना है। फिर मैंने 2007 में भी कहा, 12 में भी कहा कि देखिए, मैंने जो 3 बातें कही थी उसको मैं आज भी लागू करने के लिए पक्ष में हूं और मैं कर रहा हूं। वही बात अभी पार्लियामेंट के चुनाव में आई तो मैंने अभी बोल दिया, और अभी बोल रहा हूं ऐसा नहीं, चुनाव के बाद भी मैं बोलूंगा, लोगों को कहूंगा भैया 3 चीजों में मेरा हिसाब किताब करते रहना। यू कैन चेक इट आउट एनी टाइम। और ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो कहते हैं कि मैंने अभी बोला, या जो लोग कहते हैं मैनिफेस्टो के साथ जोड़ के, वो उनका न्यूज ट्रेडिंग का हिसाब है। अच्छा होगा मेरा 2002, 2007, 2012 गुजरात असेंबली इलेक्शन में मैंने क्या बोला था, उसी की कंटिन्यूटी में मैं बोला हूं। आप हरदम कांग्रेस सरकार को इकोनॉमिक पॉलिसी के यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, देन लेफ्ट इज आस्किंग व्हाट इज योर अल्टरनेटिव आइडिया फॉर द इकोनॉमी? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी? सवाल ये है, मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी देना चाहिए, और उसमें फ्रॉम लैब टू लैंड हमने सोचना पड़ेगा। आज जो हमारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च है, साइंटिस्ट हैं, वो चीज धरती पे नहीं आ रही है। वी हैव टू फोकस। हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमने एग्रीकल्चर के साथ 3 और चीजें जोड़नी पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूं, अगर हमको किसानों का भला करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, तो 3-4 स्ट्रेटेजीज रिक्वायर्ड। 1/3 ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटी, पैडी है, धान है, वो करते रहे। 1/3 एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन है, फिशरीज है, पोल्ट्री फार्म्स है। 1/3 शुड बी एनिमल हस्बेंड्री, एंड 1/3 जहां हमारा फार्म पूरा होता है, बॉर्डर ऑफ द फार्म्स, ट्री ग्रोइंग करना चाहिए, और वो भी टिम्बर ग्रो करना चाहिए, ताकि वो जो हम बाढ़ में 2-2 मीटर जमीन खराब करते हैं उसकी, और उसके 2-2 मीटर खराब करते हैं, उसकी जगह पे पेड़ लगा देना चाहिए। उससे उसकी इनकम की गारंटी हो जाएगी। और आज देश thousands of करोड़ रुपीस का टिम्बर इंपोर्ट करता है। देश को टिम्बर इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी किसान के घर में बेटी का जन्म हुआ, उसी दिन 5 पेड़ लगा देता है, तो इधर पेड़ बड़े होंगे, इधर बेटी बड़ी होगी। बेटी की जब शादी करनी होगी, पेड़ तैयार होगा, वो पेड़ बेच देगा, बेटी की शादी हो जाएगी, कभी उसको कर्ज नहीं करना पड़ेगा। ये बारीकी से सोचने का काम कभी कांग्रेस पार्टी ने किया नहीं, कभी नहीं किया। दूसरा, हम पहली बार कह रहे हैं किसानों को, और ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संबंध में हिंदुस्तान में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जो अफसर को जो मर्जी पड़े, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं। हम कहते हैं अब जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारा मकसद है कि जो इनपुट कॉस्ट है,
बीज है, खाद है, दवाई है, पानी है, बिजली है, मजदूरी है, प्रोडक्शन कास्ट जो इनपुट कॉस्ट, उसका 50% प्रॉफिट जोड़ करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होगा। इसके कारण अब किसान को मरने की नौबत नहीं आएगी। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आया नहीं आया, हम मानते हैं ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हर चीज के लिए बोलते हैं, पैडी से कॉटन से हर चीज। दूसरा, हम मानते हैं टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। भारत जैसा देश $3 ट्रिलियन का बिजनेस अवेट कर रहा है और गरीब से गरीब आदमी कमाता है टूरिज्म से। चाय वाला भी कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, पकौड़े बेचने वाला कमाएगा, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाएगा, फूल बेचने वाला कमाएगा। कितना बड़ा मार्केट है, दे डू नॉट थिंक अबाउट इट। हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बल देना चाहिए। ऐसी कैसी इकोनॉमी पॉलिसी है कि आयरन ओर एक्सपोर्ट करे और स्टील इंपोर्ट करे? इट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। कोयला एक जगह पे है, बिजली कारखाना दूसरी जगह पे है। इट इज अ पॉलिसी। देयर इज a vast difference between the economic policy of the Congress and BJP. You can have run the government with peaceful or with all the alliance. Of course, बिल्कुल, we do believe that is बहुत बड़ा देश है जी। रीजनल एस्पिरेशंस को हमने कंसिडर करना पड़ेगा। अगर बीजेपी को अकेलो 300 सीट मिल जाए ना, तो भी मैं 25 पार्टनर की जरूरत समझता हूँ। इन मिनिस्ट्री में भी रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि रीजनल एस्पिरेशंस का रिप्रेजेंटेशन होने से देश की ताकत बढ़ेगी। एलियनेशन से देश को नुकसान होगा। जितने ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं, जोड़ना चाहिए। ये सत्ता अकेलों को भोगने की चीज नहीं होती है, सबको जोड़ करके राष्ट्र की भलाई के लिए होती है। So you are sure that if you government बिल्कुल मेजॉरिटी आपको भाजपा को मिलेगा तो भी you will take the alliance parties in the cabinet. बीजेपी 2/3 मेजोरिटी लेगी तो भी it will be NDA government. All the NDA partners will be there. वाजपेयी जी और अद्वानी जी और आप, ये तीन प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे। आपको ये तीनों में कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? सवाल ही नहीं उठता कंपैरिजन का। वो बहुत ही बड़े महान नेता हैं, मैं तो उनकी उंगली पकड़ के चलता हूँ। मैं छोटा बच्चा हूँ। उन दो महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके ही तो मार्गदर्शन में हम बने हैं, बच्चे हैं। हमारी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती भाई। बाप के साथ बेटे की कंपैरिजन होती है क्या? तो अगर आपको ये मुद्दा पब्लिक दे देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दे देते हैं, तो व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी? फर्स्ट फोकस विल बी समथिंग। आज सबसे बड़ा संकट क्या है? आज सबसे बड़ा संकट है सरकार पर किसी का भरोसा ही नहीं है। न जनता का सरकार के भरोसा है, न पॉलिटिकल पार्टियों का भरोसा है, न गवर्नमेंट मशीनरी का भरोसा है। सबसे पहला काम है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, भरोसा पैदा करना, विश्वास पैदा करना। दूसरा सबसे बड़ा काम है टोटल सरकार कॉलेप्स पड़ी हुई है, पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस है। इमीडिएटली पॉलिसी बना करके चीजें क्लियर करनी चाहिए। इकोनॉमी को एकदम से गर्व करना चाहिए, और वो अगर हो गया तो 125 करोड़ का देश है, देश चल निकलेगा। सो ऑफिशियल मैकेनिज्म को सेट करना योर प्रायोरिटी विल बी देयर। क्या, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी रूटीन थिंग। तो तब इलेक्शन के अलावा, चुनाव के अलावा, पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री कैंडिडेट, इसके अलावा तमिलनाडु जनता के आपका मैसेज क्या है? मैं तमिलनाडु के मतदाताओं से और विशेष करके नौजवानों से प्रार्थना करता हूं, और खास मेरी प्रार्थना है 18 से 28, 18 to 28 एज ग्रुप के नौजवानों को। आपका ये जीवन का गोल्डन पीरियड है। आपके जीवन के अगर 5 दिन भी खराब होते हैं तो आपके जीवन को बहुत नुकसान होता है। द पर्सन हु इज एट द एज ऑफ 65 और 70, उसकी जिंदगी में 5 साल 10 साल भी बिगड़ जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 18 to 20 एज ग्रुप के जवान में 5 दिन भी बिगड़ जाए, बहुत फर्क पड़ता है। आपको आपके भविष्य के लिए, आपके अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने भविष्य के लिए सोचो। क्या दिल्ली में ऐसी सरकार रही तो आपका ये एज टाइम, गोल्डन टाइम बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका गोल्डन टाइम बर्बाद ना हो,
ये मेरी चिंता का विषय है। और इसलिए आप इस गोल्डन टाइम को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए इनिशिएटिव लीजिए। सिर्फ वोटर नहीं, कैनवासर बनिए, लोगों को समझाइए। तमिलनाडु की ये 2 पार्टियों की उलट-सुलट चल रही है, उससे लोगों को बाहर निकालिए। नेशनल पॉलिटिक्स के लिए आप इनिशिएटिव लीजिए। और मैं तमिलनाडु के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके देखिए। तमिल एस्पिरेशंस को अच्छे से अच्छे ढंग से एड्रेस करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी में है, मुझ में है। और मुझको तो तमिलनाडु ने बहुत प्यार दिया है। मैं उस प्यार को तमिलनाडु का भला करके, तमिलनाडु का विकास करके लौटाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for sparing your precious time and என்ன நண்பர்களே, இன்றைய கேள்விக்கென்ன பதில் நிகழ்ச்சியில் ஒரு வித்தியாசமான நேர்காணலை நீங்கள் அனுபவித்திருப்பீர்கள். குஜராத்துடைய முதலமைச்சரும் இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் வேட்பாளராக பாஜக மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அறிவிக்கப்பட்ட திரு நரேந்திரபாய் மோடியுடைய நேர்காணலை பார்த்திருப்பீர்கள். ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தியில் இருந்தாலும் கூட கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வரியும் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய புரிதலை கொடுத்திருக்கும். தந்தி டிவி இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் யாரும் செய்திராத ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான முயற்சியை இந்த செய்திருக்கிறது. முதல் முறையாக உங்களுடைய தந்தி டிவிக்கு உங்களுக்காக கொடுத்த நேர்காணலை நீங்கள் அனுபவித்திருப்பீர்கள். மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.